Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Sri Prem Jyotish ji. Hello Prem ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji's taken his time out yet again to be with us on a beautiful episode of Only Emails. That means today is a very special email dedicated episode where I'm going to read out your emails and Premji will give you the best guidance, remedies, and solutions as per your birth chart. So let's find out who sent in the first email for today. और प्रेमजी आज की पहली email जो आई है. This is from Miss PS. Gender is female. Date of birth is June 28, 1972. Place of birth is Secunderabad. Time of birth is 8 in the morning. Having a lot of troubles with her husband. She started working very hard because he stopped working. He doesn't have a job and whatever money he has, he gambles the money away. She kind of feels bad when he fights with her to make the marital status better. She gives him the money. Now she's found out he's having extramarital affairs as well. Should she continue to stay with him or get a divorce? Do you see a separation in her horoscope? She believes that her sister-in-law also are not very nice to her. They are also not capable of reconciling the husband, her and her son's relationship. So she's feeling neglected and she's wondering whether she should divorce him and move back to India. Mrs. PS, if you are June 28, 1972, सिकंदराबाद इनका 8 AM का बर्थ है. शी इज़ ए कैंसर राइजिंग और इनका जो मून साइन जो है वो सेजिटेरियस है. कर्क लगन है और धनु राशि है इनकी. कर्क लगन का लॉर्ड होता है मून जो इनकी जन्मपत्री में गुरु के साथ बैठा हुआ है. तो शी हैज़ ए गज केसरी योग इन द बर्थ चार्ट एंड इनको दशा चल रही है इस वक्त जुपिटर की. और जुपिटर में बेसिकली शी इज़ गोइंग थ्रू ए मून ट्रांजिशन एंड और जन्मपत्री में इनके 7th हाउस में विच इज़ द हाउस ऑफ मैरिज में वहाँ पे राहु बैठा हुआ है. तो जब राहु 7th हाउस में बैठ जाए तो टेक्निकली आपके रिलेशनशिप में मैरिज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा से ही रहता है पहले दिन से. तो बेसिकली जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि husband is basically more into gambling and spending money and relationship भी इतना stable नहीं है and राहु की वजह से जो है दूसरे influences भी आ जाते हैं relationship में. So he is also cheating on her in turn. Right. And this is what the Rahu does, that when you have that in the 7th house. And राहु आपकी ससुराल भी होती है. किसी की भी पत्रिका में राहु ससुराल से देखा जाता तो it means 7th हाउस पार्टनरशिप रिलेशनशिप का. तो वहाँ से भी वो जो जैसा एक कोऑर्डिनेशन और एक तरह से जैसे कहते हैं कि सपोर्ट, अगर कोई गड़बड़ है तो फैमिली सपोर्ट करती है एक दूसरे को, तो वो भी नहीं मिलता है. एंड शी इज़ ऑल्सो ए मांगलिक टू. शी हैज़ ए मंगल इन द 1st हाउस टू. तो पहले घर में मंगल बैठा है बट मार्स जो है कर्क राशि में बैठा है केतु और बुध के साथ. तो वो चंद्र मांगलिक हो जाता है. तो इट इज़ नॉट दैट इम्पैक्टिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स बीन सिटिंग विद बुध एंड केतु वो परेशानी क्रिएट करता है. Right. एंड अभी गुरु मार्स में जाएगा इस साल जून के बाद. तो थोड़ा और भी इनको जो है बेसिकली परेशानी आनी शुरू हो जाएगी. Right. एंड नेक्स्ट ईयर जैसे ही वो जून में राहु के अंदर करेगा एंटर तो दैट्स द टाइम जी वो सेपरेशन और इस तरह की चीज़ों को करना शुरू कर देता है. क्योंकि इनका जो टाइम है वो 2028 टिल अप्रैल 10 तक का इतना पॉजिटिव नहीं है. अच्छा. तो जिस तरह से इनकी अलाइनमेंट है तो जिससे इंसान की सेपरेशन भी हो जाती है. So then, Premji, her main question is that should she separate from him? Should she give him a divorce? And what will happen about her finances and her son? And should she leave everything and move back to India, or she should continue to stay here? And if she does get divorced to him, do you see a marriage for her after that? देखिए इन राहु जब आपके चार्ट में बैठता है तो आपकी शादी कहीं भी होती है तो यू विल गो थ्रू द सेम थिंग इन द लाइफ, राइट जी. बिकॉज यू कैन चेंज योर डेट ऑफ बर्थ, राइट. जो
डे टाइम प्लेस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट हो गया, जो डिग्रीज हो गई तो वो वही रहेगी। दशाएं अंतरदशाएं चेंज होती हैं। सो व्हाट शी शुड डू इज़ इनको इस चीज़ को काउंटर करना चाहिए, बिकॉज शी ऑल्सो हैज़ अ किड्स इन द फैमिली Right. एज वेल टू। तो अगर ये इनको करेक्ट कर सकती है तो शी कैन एबल टू सेव दिस relationship. That's the path that she should take it based on her timeline, because 2028 से इनको शनि की दशा स्टार्ट होगी, तो जब सैटर्न आएगा वो 19 ईयर्स का इनका सक्सेसफुल टाइम I है। see. तो अभी ये जो ट्रांजिशन है इनको इस चीज़ को काउंटर करना चाहिए ताकि अपनी चीज़ों को अपनी लाइफ को वो बैलेंस कर पाए। So then, Premji, what would you recommend as remedies for her, or any stones you recommend for her to wear? देखिए, एक इनको येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी इंडेक्स फिंगर में। उसको थर्सडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो है इनका जो लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। जो गुरु फीमेल में मेल प्लैनेट होता है, ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर, हस्बैंड एंड द चाइल्ड। मंडे का फास्ट करें, एक टाइम खाना खाएं, दिन के वक्त फल फ्रूट जूसेस लें। तो मून इज़ लॉर्ड शिवा, जो इनका राइजिंग लॉर्ड भी है और इनके इष्ट देव भी है, तो बहुत पॉजिटिविटी लेके आएगा। राहु है 7th हाउस में, तो अपने पार्टनर से इनको फेरे ले लेने चाहिए टेंपल में जाके, जिससे राहु इम्पैक्ट जो है जो मैरिज को ख़त्म कर रहा है वो वहीं ठीक हो जाए। और 4th थिंग जी, इनको एक 70 ग्राम की सिल्वर ब्रिक लेनी चाहिए, चांदी की ईंट जो बिल्कुल सॉलिड हो, बिल्कुल जैसे ब्रिक की तरह बनी होनी चाहिए। उसको ग्लास जार में गंगा जल डाल के उसमें ब्रिक डाल के उसको किसी भी पूजा स्थान में या अपने रूम में रख दें थर्सडे के दिन, तो जिससे इनका राहु और भी पॉजिटिव हो जाएगा। देन शी कैन एबल टू सेल थ्रू, और जितनी भी ये नेगेटिव फोर्सेस हैं इनकी लाइफ में वो सब हटनी शुरू हो जाएंगी, एंड शी विल सी अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। So we would recommend to her to stay in this marriage, do the remedies, not move back to India, and her husband will turn around. Thank you, Premji. So like Premji is advising you that moving away from this particular marriage, you can end up again in a marriage which probably would be similar to the one that you're going through, because those are the planets that unfortunately you're born with. However, Premji is giving you an umbrella that you can use to counter those ill effects of the planetary positions, which is making sure that you stay vegetarian on the day that you're going to wear the Pukhraj. It's usually on Thursday. There's a small mantra that you have to say. And if you can continue being vegetarian and do the mantra every Thursday, along with that, you also need to do the other remedies that Premji has mentioned, especially the silver brick. It can be of any size, Premji is saying, but it should not be hollow. It has to be a solid one submersed under Ganga Jal. Shut the lid tight and keep it away quietly in your temple, and Rahu's effects will start to calm down, and your husband will see the light of day and will realize how important you are in his life. And if you have any other questions, you can always email us. So, alright, dosto, ab waqt aa gaya first to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आपकी जितनी भी टेंशन है आपके करियर और आपकी पब्लिक लाइफ के ऊपर रहेगी। एक्सपेक्ट करिएगा कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा, लेकिन रश मत करिएगा। स्टडी रहेंगी, प्रोग्रेस होती रहेगी आपकी इस वीक के अंदर। फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशन लीजिएगा, किसी तरह के भी इम्पल्सिव परचेजेस मत कीजिएगा। रोमांटिक जो रिलेशनशिप है थोड़े से ग्राउंडेड लेंगे, पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। थोड़ा टाइम लीजिएगा, थोड़ा टाइम सेल्फ केयर के लिए लीजिएगा। अवॉइड करिएगा फिजिकली, ज़्यादा जोर मत लगाइएगा चीज़ों के ऊपर। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, आप सोच रहे हैं कि आप एक्सपेंड करें अपने होराइजन को, जैसे ट्रैवल, स्टडी और करियर को लेके हो गया। अपॉर्चुनिटीज़ आपके काम के ऊपर आएंगी, नई टीम या नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, तो ओपन माइंडेड रहिएगा। फाइनेंशियली चीज़ें थोड़ी स्टेबल लगती हैं। ये अच्छा वीक है अगर आप फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर रहे हैं। रिलेशनशिप थोड़े से डीपर हो जाएंगे इस वीक के अंदर, स्पेशली अगर आप थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाएंगे। थोड़ा स्ट्रेस रहेंगे, अपने आप को रिलैक्स बना के रखिएगा ताकि चीज़ें बैलेंस रहें। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, जो इमोशनल एंड फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो जो है आपका फोर फ्रंट रहेगा इस वीक के अंदर। थोड़े चैलेंजेस आएंगे काम के ऊपर, बट वो थोड़े टेम्परेरी हैं, हैंडल कर पाएंगे आप स्ट्रेस, लेकिन थोड़ी पेशेंस बनानी पड़ेगी। फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है थोड़ा ईज़ हो जाएगा, लेकिन आपका फोकस
जो है बजटिंग के ऊपर होना चाहिए और अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा रिड्यूस करिएगा। रोमांस जो है थोड़ा स्टेबल रहेगा, पर थोड़ा केयरफुल रहिएगा कि छोटी चीज़ों को एस्केलेट मत होने दीजिएगा, और अपनी हेल्थ की, अपनी फिजिकल चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखिएगा और थोड़ी मेडिटेशन भी करिएगा। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए दिस वीक के अंदर जी जो वेरी स्ट्रॉन्ग एम्फसाइसिस ऑन पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप को लेके इस वीक के अंदर बैलेंस बना के रखिए। काम और पर्सनल लाइफ को, अपनी चीज़ों को बिल्कुल प्रायोरिटी रखिएगा, क्लियर रखिएगा जो भी आप काम कर रहे हैं। अवॉइड करिएगा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, फोकस रखिएगा कि स्टेबिलिटी रहे फाइनेंस के ऊपर। फैमिली एंड जो होम लाइफ है थोड़ी सी ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, खास करके इमोशनल चीज़ों को लेके, और थोड़ी अपने डाइजेशन का ध्यान रखिएगा और एंड बी माइंडफुल ऑफ थोड़ी अपनी एनर्जी लेवल को लेके भी। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ यहीं रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर वेरी स्मॉल ब्रेक। दिस इज द फर्स्ट ब्रेक ऑफ आवर शो, so don't go too far because there's lots more coming. We have more horoscopes, we have more emails in the show coming up. Could be your email I read, so don't go too far. We'll see you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish Ji. And Prem Ji is here in the studio. He's taken his time out to be with us, specially because he believes in giving his guidance to all the viewers out there, because you write in so many emails to take Prem Ji's help and his solutions. And for just that reason, today is a very special email dedicated episode where Prem Ji will give you the best remedies guidance as per your zodiac signs and your birth chart. So let's find out who sent in the next email. और प्रेम जी अगली मिल जाई है। दिस इज फ्रॉम मिस ए जी। डेट ऑफ बर्थ इज August 2nd, 1983. प्लेस ऑफ बर्थ इज मोगा, पंजाब. टाइम ऑफ बर्थ इज 4:02 अर्ली मॉर्निंग. शी wants you to help her understand why is her career not stable. She says the financial situation is related not only to her career and her job. She's not even getting good job offers, and the job that she wants, she stays there for 4 to 5 months, but something happens and she gets fired. So she's not having a very good resume to even approach anybody else with a job profile. And she says she really needs your help in improving her financial situation as well. देखिए मिस एजी, अगर आप August 2nd, 1983 इनका मोगा, पंजाब, इनका 4:02 AM का बर्थ है। शी इज़ जेमिनाई राइजिंग और इनका मून साइन जो वो एरीज है। मिथुन लगन और मेष राशि है इनकी। मिथुन लगन का लॉर्ड होता है बुध, राशि का लॉर्ड है मंगल, एंड इनको मंगल की दशा चल रही है 2018 से, जो कि इस साल October 2 तक रहने वाली है। तो मंगल जो है, जो इनकी कुंडली का जो लॉर्ड है बुध, वो बेसिकली का शत्रु होता है। कहते हैं मार्स जब भी आता है तो हार्डशिप देता है, स्ट्रगल कराता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आप जो एफर्ट लगाते हैं उसकी आउटकम नहीं आती, आप स्टेबल नहीं रहते अपने करियर के अंदर। सो यू सी दैट काइंड ऑफ ए बेसिकली अ पैटर्न ड्यूरिंग दिस महादशा, क्योंकि मंगल जो है इनकी जन्म पत्री में, इनके लगन में ही बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस के अंदर राहु के साथ। राहु के साथ बैठ जाए तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि मंगल की दशा है तो राहु सपोर्ट करेगा। पर जैसे ही इनका मंगल खत्म होगा, शी विल स्टार्ट है राहु पीरियड दिस ईयर अक्टूबर में। तो तब ये इनकी लाइफ का जो है 19 ईयर्स का राहु पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टाइम ऑफ हर लाइफ, जिसमें करियर में, फाइनेंशियल चीज़ों में काफ़ी स्टेबिलिटी इनको दिखनी शुरू हो जाएगी जी। दूसरा, इनका बुध जो है वो सिंह राशि में बैठा शुक्र के साथ, तो थर्ड हाउस में मरकरी हो, तो आप थर्ड हाउस इज ए हाउस ऑफ फोर्स, पराक्रम जिसे हम बोलते हैं जी। आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए कुछ लोगों को एक बार में ही चीज़ें हो जाती हैं करने से। सम पीपल दे टेक 2-3 टाइम्स टू गेट देयर थिंग टाइम। कुछ लोगों को 6-7 बार करना पड़ता है। तो दिस इज़ व्हाट मरकरी डज इन द थर्ड हाउस। तो कोई भी चीज़ आसानी से लाइफ में नहीं आती। तो वहाँ बैठ के बुध जो है वो कहता है कि मैं तुम्हारे से हार्डशिप कराऊंगा, बट उसकी आउटकम ज़रूर दूंगा। अब आउटकम तुम्हारी तब आती है जब तुम्हारी दशा आपके असेंडेंट को सपोर्ट करती है। असेंडेंट और दशा का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इनकी दशा चल रही है मंगल की, विच इज़ अपोजिट बुध की। तो जैसे ही राहु आएगा तो
लग्नेश लॉर्ड और दशा में कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, देन शी विल सी ए ग्रेट आउटकम। बट इनको अपने मरकरी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए। So, Premji, what would you recommend as remedies for her? एक तो इनको एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में। उसको वेंसडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो है इनका लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। बुधवार के दिन इनको दुर्गा चालीसा करते रहना चाहिए। एक क्या कहते हैं, किसी भी टाइम पे करें और कोशिश करें कि उस दिन ये वेजिटेरियन भी रहें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अभी राहु दशा इनको आने वाली है, तो मंगल अभी चल रहा है जो कि अक्टूबर तक रहेगा, तो टिल देन शी शुड पुट सिंदूर ऑन हनुमान जी फीस्ट ऑन ट्यूसडे के दिन। Okay. उनके पैरों में सिंदूर चढ़ाएं जैस्मिन ऑयल में मिक्स करके, तो जिससे जो मार्स इम्पैक्ट है वो शांत रहेगा। एंड ऑल्सो शी शुड ऑल्सो डोनेट फूड टू द होमलेस शेल्टर वंस ए ईयर। थर्सडे के दिन इनको ये भी करते रहना चाहिए। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that yes, he is foreseeing difficult times that you're saying. You're having issues with the job, you're having issues with people not recognizing your talent. He sees 19 years of good luck, good fortune coming your way. Your time is coming. Hang in there in whatever job that you're doing. You need to start wearing an emerald. Also, you need to do some kind of donation on a Thursday every year, once a year, to make sure that the planets stay calm and everything will turn around for you. Just stay patient because your time is coming now. और दोस्तों, वक्त आ गया है for us to understand from Prem ji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Prem ji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, जो कम्युनिकेशन है इस वीक के अंदर, जो इमीडिएट सराउंडिंग है, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देयर आर चांस टू शो केस योर स्किल्स, तो प्रिपेयर रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपके लिए। फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो काफ़ी इंप्रूव करेंगे अगर आप स्टिक रहेंगे अपने बजट को और अपने अवॉइड करिएगा बिग एक्सपेंसेस को इस वीक को लेके। रिलेशनशिप काफ़ी सॉलिड रहेंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा इट्स हार्ड टू एक्सप्रेस, बट थोड़ा ओपन रहिएगा इन चीज़ों को लेके। एक्टिव रहिएगा, ज़्यादा पुश हार्ड मत करिएगा और रेस्ट भी करिएगा इस वीक के अंदर। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर जो है फोकस पर्सनल ग्रोथ और काम की स्टेबिलिटी पे रहेगा। आपके अंदर अर्ज रहेगी कि चेंज करें चीज़ों को, बट थोड़ी सी थिंकिंग क्रिटिकल यूज़ करिएगा और बैलेंस बना के रखिएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑन द हराइजन है अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे अपनी स्पेंडिंग को लेके। रोमांस थोड़ा बिट स्लो रहेगा, बट एफर्ट जो है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग रहेंगे। कनेक्शन जो है लॉन्ग रन में पे ऑफ करके जाएगा। थोड़ा अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर एंड सोशल स्टैंडिंग है वो सेंटर स्टेज रहेगा इस वीक के अंदर। एक्सपेक्ट करिएगा अपॉर्चुनिटी टू एडवांस, जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बेटरमेंट आएगी। लेकिन चेंज करते समय डरिएगा मत, अफ्रेड मत होइएगा। बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट आएंगी, प्रिपेयर रहेगा एडवांस के अंदर। रोमांस स्मूथ रहेगा, बट इग्नोर मत करिएगा छोटी चीज़ों को रिलेशनशिप के अंदर। फोकस बना के रखिएगा मेंटल हेल्थ के ऊपर। कंसिडर करिएगा मेडिटेशन या रिलैक्सेशन, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो चेक में रहे। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर जो आप अपना विजन, जो आपकी प्रोफेशनल, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसको थोड़ा और बड़ा करिए और आप अडेप्ट करिए नए तरीके काम के ऊपर, जिससे आप यू आर ओपन टू इनोवेशन जिसमें रहे आपके लिए। फाइनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल है अगर आप कॉशियस थोड़ा इन्वेस्टमेंट को लेके थोड़ा क्लियर रहे, ताकि आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो अच्छी रहेगी। इमोशनल डेप्थ है वो थोड़ा सा टाइम लेगी, आपके रिलेशनशिप के ऊपर नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। थोड़ा ऑनेस्ट रहिएगा अपने पार्टनर के साथ और मेक श्योर कि आप रेस्ट भी करें और अपने आप को पुश मत करिएगा इस वीक के अंदर ज़्यादा। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों, प्रेम जी मेरे साथ यही रहेंगे because time now for yet another break for our show. But don't go too far. When we come back, we'll be taking more emails, talking about more zodiac signs, and of course, we'll have a question for today. So don't go too far. But if you feel you want your horoscope read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. See you right after this short break.
Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishji. Premji is here in the studio because he believes the power of knowledge, numerology, and astrology can really help all the viewers who write into us, who believe in Premji and you watch our show every Sunday. You've written into us with so many emails, so we've decided that we need to do a lot of email dedicated episodes, and today happens to be one of that. We were talking about emails and horoscope before we went on to the break. So let's find out who sent in the next email for today. और प्रेम जी अगली email जाई है. This is from Miss K. Date of birth is Feb 3rd, 1962. Place of birth is Raja Mandri. Time of birth is 10:15 in the evening. She says she was doing reasonably well, but now she has depleted all her wealth. She's going through a lot of depression and is also on medication. Financially, she's not doing too well, but however, she wants to wean off from those medications because she feels they're not really doing good for her. Can you let her know whether that is a right decision for her to get off of them, and will things change for her or not? Mrs. K, if you are February 3rd, 1962, इनका राजा मुंदरी 10:15 PM का बर्थ है इंडिया का. इनका कन्या लगन है जिसमें इनकी मकर राशि है. कन्या लगन का लॉर्ड होता है बुध, राशि का लॉर्ड है शनि, एंड इनको 7.5 चल रही है 2020 से, जो कि इस साल मार्च में जाके ख़त्म हो जाएगी. एंड 2016 से शी इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू अ शनि दशा विच इज़ देयर टिल 2035 अप्रैल तक रहेगी. जन्मपत्री में नॉर्मली लोगों के 2 प्लैनेट्स या 3 या 4 एक साथ में हो जाते हैं. 5 हो जाएं तो वी कॉल इट ए पंचायत, मीन्स 5. बट शी हैज़ अ वेरी यूनिक हॉरोस्कोप दैट शी हैज़ 8 planets in the 5th house, and Rahu is in the 11th house, because Rahu Ketu has a 6 house difference always, which is a very, very rare and unique thing. You normally don't see such thing like that when you see the horoscope, which is considered to be a very powerful basically Raj Yoga. And you can, 5th house is your mind and Mool Trikon. Basically you can capture, or if you meditate or manifest anything, you can get anything in your life if you want. Problem what she is having is because when you have Sun, Moon, Saturn, Venus, Mercury, Ketu, Jupiter, and with all these alignments are there, but when you have Saturn and Moon and Ketu together, that causes a Vish Yoga, and Moon and Ketu causes a lunar eclipse. So Moon is your mind. तो बुध भी वहीं पे बैठ गया जो इनका ब्रेन है. तो बेसिकली इट गिव्स यू, मेक्स यू केमिकली इम्बैलेंस. विश योग स्टार्ट हो गया. शनि दशा हुई तो वो सैटर्न, मून, केतु भी एक्टिवेट हो गए. 7.5 तो चलो 15 मार्च से ख़त्म हो जाएगी, नेक्स्ट मंथ से. सो शी विल एबल टू सी रिलीफ, बट बिकॉज ऑफ द सैटर्न पीरियड विच इज़ देयर टिल 2035, दैट इज़ व्हाट द विश योग इज़ causing her and giving, that's why she is on medication. और विश योग की वजह से आप रॉन्ग डिसीजन लेते हो, जिसकी वजह से आप अपने पैसे को भी ख़त्म कर देते हो या अपनी वेल्थ को भी कर देते हो. तो उस चीज़ को इनको करना चाहिए, बिकॉज एक बार वो अलाइनमेंट ठीक होगी तो यही चीज़ें नेगेटिव will become a positive, and she can able to gain whatever she have lost. And she can see a good thing in her health as well too. So then Premji, now that she's going through a tough time, she wants to know when can she get off the medication. She's feeling kind of not well balanced in life. What would you recommend as remedies for her? देखिए, एक तो इनको लॉर्ड शिवा का पूजा करना चाहिए. मंडे के दिन शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे जो है विषियो, क्योंकि उन्होंने ही जहर को ख़त्म किया था, तो मंडे के दिन उपवास करें या एक टाइम खाना खाएं या वेजिटेरियन रहे. कई बार व्हेन यू आर ऑन मेडिकेशन यू कैन स्टे डू अ फास्ट बिकॉज यू हैव टू ईट एंड एवरीथिंग इन दैट टू. बट आप वेजिटेरियन रह सकते हैं, नहीं तो फास्ट करें मंडे के दिन. एक इनको एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी लिटिल फिंगर में, गोल्ड में. उसको वेंसडे के दिन पहने तो जिससे जो इनका बुध जो है वो स्ट्रांग हो जाए. दुर्गा चालीसा इनको वेनसडे के दिन करते रहना चाहिए, जिससे बुध का जो इम्पैक्ट है इनको स्ट्रेंथ दे मेंटल, ताकि ये अपने
एंग्जाइटी, अपने डिप्रेशन को ओवर पावर कर पाएँ। जी। एंड फोर्थ थिंग इनको जो करनी चाहिए, सो इनको सैटरडे के दिन मस्टर्ड ऑयल में भी अपने फेस की रिफ्लेक्शन देखते रहना चाहिए। उसको किसी स्टील बाउल में डालें, फिर अपना चेहरा देख के फिर उसमें एक लौंग डाल के उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दें। ये इनको महीने में 2 या 3 बार सैटरडे के दिन करते रहना चाहिए। इफ़ शी कैन डू इट एवरी सैटरडे दैट इज़ वेरी वेरी गुड। तो जिससे शनि छाया जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब जन्मपत्री में गुरु शनि, गुरु केतु, गुरु बुध, मंगल शनि हर तरह के योग बनते हैं। राइट। क्योंकि इसमें गुरु केतु राहु का चंडाल योग भी बनता है, तो पितरों का भी इम्पैक्ट आता है फैमिली के अंदर। तो इनको जो है अपने एंसेस्टर्स के लिए भी जब भी श्राद्ध पीरियड आता है सितंबर के वक्त, तो वो भी इनको पितरों की भी पूजा या उनके लिए डोनेशन करते रहना चाहिए, ताकि जो भी इनकी जो पत्रिका में जो नेगेटिविटी है वो सारी ख़त्म हो जाए फिर इससे। Thank you, Premji. So, like Premji is suggesting, planetary position is aligned in a way that, it's a very unique horoscope. But with a unique horoscope also comes some kind of a trouble. So, that's what you're facing right now. You are going to get off your medication. However, Premji is saying that you need to do the mustard oil remedy, making sure you're doing it alone. There's nobody else around it, because you want the negativity going into the mustard oil onto a tree trunk or anywhere else outside. You start, and you also have to wear emerald, making sure it's a good quality untreated unheated stone, and also do Shivji ki puja every Monday. Try and stay vegetarian besides the other remedies that Premji has given you, and your path will open up to a beautiful future ahead. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर जो इनर रिफ्लेक्शन जो रहेगी ज़्यादातर लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर आप लोगों की, थोड़ा फोकस बना के रखिएगा। काम के ऊपर चैलेंजेस आएंगे, थोड़ा आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, जो भी जिस तरह भी कोई जो प्रॉब्लम को आपको बाहर निकलने के लिए अवॉइड करिएगा। ज़्यादा खर्चे मत करिएगा, अपनी सेविंग के स्टिक करिएगा बजट के ऊपर। रिलेशनशिप थोड़े सॉलिड रहेंगे, माइंडफुल रहिएगा, ओवर थिंकिंग मत करिएगा। छोटी छोटे इश्यूज़ को लेके फोकस बना के रखिए अपनी माइंड और बॉडी के ऊपर भी, अपनी हेल्थ को भी इग्नोर मत करिएगा। Capricorn? कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, आपका जो काम और पब्लिक इमेज है वो सेंटर स्टेज रहेगी। प्रोफेशनल सक्सेस रहेगा विद इन रीच के अंदर, बट अफ्रेड मत होइएगा किसी तरह की भी जो भी कैलकुलेटिंग आप रिस्क लेंगे इस वीक के अंदर। थोड़ा केयरफुल रहिएगा स्पेंडिंग को लेके, फोकस बना के रखिए स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेल्थ को लेके। रिलेशनशिप है वो उनको रिक्वायर है, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा टू मेंटेन हार्मनी, और थोड़ा टाइम दीजिए इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन के ऊपर, और अपनी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए और मेंटेन रखिए जो हेल्थी रूटीन है आप लोगों की लाइफ में। Aquarius? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी क्रिएटिविटी और पर्सनल एक्सप्रेशन को लेके। आपको ऑफ़र होंगे एक्साइटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। बी बोल्ड और रियलिस्टिक रहिएगा इस वीक के अंदर। फाइनेंसिस बेटर हो जाएंगे, बट कैरिड अवे मत होइएगा अननेसेसरी एक्सपेंसेस को लेके। रिलेशनशिप में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा जो अगर आप ओपन कम्युनिकेशन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग जो है बेटर हो जाएगी। बैलेंस बना के रखिए, अवॉइड करिएगा मेंटल ही, थोड़ा अपने आप को शांत करके रखिएगा, ब्रेक लीजिएगा ताकि ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। And Pisces? पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, फोकस बना के रखिएगा पर्सनल एंड होम लाइफ के ऊपर। इस वीक के अंदर थोड़ा टाइम निकालिए सेल्फ केयर के लिए। आप काफ़ी इंस्पायर फील करेंगे, चेंजेस लेके आएंगे अपने करियर डायरेक्शन में। अपने गोल्स को क्लियर रखिएगा, थोड़ा कॉशियस रहिएगा फाइनेंसिस को लेके, अवॉइड करिएगा मेकिंग इम्पल्सिव डिसीजंस। रिलेशनशिप जो है पहले से इमोशनली जो है बेटर हो जाएंगे। क्वालिटी टाइम आप अपने लव्ड वन के साथ निकालेंगे। फोकस बना के रखिए सेल्फ केयर पे, फिजिकल हेल्थ पे, और मेंटल क्लैरिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर। Thank you, Premji. You come to the show with abundance of knowledge and so much gyan as per astrology and numerology. You are able to quickly find out what's really going on with people's horoscopes. And guys out there, if you want Premji to read your horoscope, your zodiac signs, your birth details, and you don't want your name said on the show, you can always write male or female as a gender, ensuring you do write into us the place of birth, time of birth,
and the exact reason why you want Premji to read your horoscope, because there's so many viewers out there who want to understand what really is going on in their life. If you are one of them, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying namaste. See you next week.